आई एम अ लिटिल बिट नर्वस राइट नाउ. नर्वस इसलिए क्योंकि अभी इन अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू गेट hypnotized. That is not an exaggeration. I am going to get hypnotized by a professional clinical hypnotherapist, clinical psychologist. आज की जो मेरी गेस्ट हैं, she is a hypnotherapist and she is not a magician. This is not a magic trick. This is serious therapy. I wanted her to come on the show because मैंने इनके बारे में बहुत सुना था और मैंने देखा था कि कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके ब्रेक थ्रूज हुए एंड आई हैव सीन पर्सनालिटी चेंजेस. सो आई नो शी इज द रियल डील. आई थॉट कि इससे बढ़िया क्या होगा कि मुझ पे ही वो हिप्नोथेरेपी करें. अब हिप्नोथेरेपी के कुछ टेक्निक्स होते हैं. आई हैड रिक्वेस्टेड हर particularly and specifically to give us a demonstration to do it on me, and so she has agreed. She will not do the full hypnotherapy, which will not be captured on camera, the hypnotherapy, but there will be some induction techniques. कुछ induction techniques होंगी hypnosis की जो वो करके दिखाएंगी. अभी मुझे नहीं पता कि क्या होगा. I don't know what will happen, but मेरी उम्मीद है hypnosis successful होगा, एक trance state होगा. आई डोंट नो हिप्नोथेरेपी के सेशन में क्या अंदर से निकलता है. मैंने सुना है कि लोग रोते हैं और बहुत डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट वील सी अबाउट दैट. एंड आफ्टर दैट आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हर एंड वी विल गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, ड्रीम्स में क्या होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस हद तक लोग सजेस्टेबल हैं, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है. I want to separate the fact and the pseudoscience from the real techniques. This is what is going to happen. Ab, let us see what happens next. All right, sir. Are you comfortable? Yes. ठीक है. So आप अपने दोनों हाथों को भी आर्म रेस्ट पे रख लीजिए. ठीक है. Yes. Be comfortable. And slowly start concentrating on your breath. Close your eyes. धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए. Just try and concentrate on your breath. Feel your breath going in and feel your breath going out. Now I want you to open your eyes again and अपने left hand को place it in, yes, at this distance. Put your elbow down. Yes. And now start staring at the tip of the longest finger. As you stare and concentrate at the tip of the finger, focus all your attention on your breath. Feel your breath going in and feel your breath going out. While you stare and concentrate at the tip of the finger, focusing all your attention on your breath, feeling your breath becoming deep and rhythmic, you may soon find your fingers start spreading slowly and slowly away from each other, with and without your awareness. Spreading away, pulling apart from each other. You may soon find that now your hand and your arm is slowly starting to move towards your face. Only you know whether the hand or the arm is pulling it inwards. And as soon as you feel the touch of your hand on your body, your eyes will then close. Your eyelids are becoming heavier and heavier. You are now in a state of deep, deep relaxation. And now, I'm going to count you up from 1 to 20, and with each count, you are going to come upwards
in this present state. 1, 2, 3, coming upwards with 4, 16, further up with 17, 18, 19, and 20. You can open your eyes slowly. How are you feeling? Good, very relaxed. It was a very interesting experience. The first shock for me, जो मैं बिल्कुल expect नहीं कर रहा था, was the first command when you said, and I had no intention, but my finger opened, and this was the first proof to my conscious mind that something is going to happen that is beyond my conscious control. मतलब ये, और उसके बाद फिर कुछ आपने काउंटडाउन्स करे, उन काउंटडाउन से मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब ये उस वक्त तो बिकॉज यू आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस एंड आपके थॉट्स इतने कॉन्क्रीट नहीं होते, बट जब प्रूफ बिल्डअप होता रहा उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब आपने काउंटडाउन किया और जब आपने इंटीग्रेशन करा तो मुझे लगा कुछ कर दिया गया है मुझे जो मेरे कॉन्शियस कंट्रोल के बाहर है. अब ये मेरे को समझ में आए या ना आए, ये हो चुका है. दिस आई गॉट दिस प्रॉपर फीलिंग. आपके आई मोमेंट से आ रहा था समझ में दैट यू आर इन दैट स्टेट. हाँ, नहीं मैं था, और मतलब जब बिल्कुल डीप था तो मतलब इट वाज हार्ड फॉर मी टू इमेजिन certain things, but by that time my mind was, I think, consciously convinced, and it was consciously convinced to ho gayi because it was real that this is something, and if the command is issued and if it is going inside, it is going whether I realize it or not. Right. And that hand wala experience had taught me that don't underestimate it, it's real. Yes, definitely sir. And I don't know uska that the intention or not, मुझे ये नहीं पता अगर ये उसका intention था या नहीं था, but एक्सपीरियंस करे बिना मुझे नहीं लगता कि ये समझ सकता है कोई इंसान. एब्सोल्युटली. यूजुअली जो आपने फीडबैक दिया यही फीडबैक नॉर्मली मिलता है कि ये जो फर्स्ट जब फिंगर ओपनिंग वाली चीज होती है, दैट वाज वेरी शॉकिंग, क्वाइट शॉकिंग. इट जस्ट डिड इट, the body did it. The mind was not wanting to do it or not actually expecting to see, but the body followed the command. Because you were in that suggestibility wala state. Yeah. Because you wanted it. Hypnotherapy में this is very important कि आप actually में चाह रहे हो कुछ काम. हाँ. और जो बाद में जो आपने एंजाइटी वाला बताया, तो एटलीस्ट जब तक हम बीच पे थे इमेजिनेशन मेरी विविड थी काफी हद तक. उसके बाद वो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हो गई. बट आपने जब मुझे बोला कि गिव द एंजाइटी ए shape, my mind went to the shape, and I chose sort of an hourglass subconsciously because उसके जो constriction होता है ना, दम घुटने वाला feeling, I think I associated with that. And the redness of it, maybe it comes subconsciously from horror movies or whatever, but the feeling red of darkness है, that means intensity is there. अगर light color आ रहा है, that means उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है. हाँ, नहीं, जो मैंने इमेजिन करा कि अगर कोई कलर होगा तो क्या होगा, तो रेड ही आया, लाल है कलर इसका. और उसके बाद जब आपने उसको तोड़ने के लिए बोला तो मैं तो उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को तोड़ रहा था, एंड आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट कि ये एंजाइटी के साथ कुछ हम कर रहे हैं, बट वो फिजिकल ऑब्जेक्ट में तोड़ रहा था. एंड आई वाज इमेजिनिंग माई सेल्फ इन अ, बिकॉज इट वाज लाइक एन आवर ग्लास. मेरे दिमाग में कांच था, तो आई हैड पुट इट इन अ बाथटब and I was breaking it with a hammer ताकि उसके पीछे इधर उधर ना जाए. ठीक है.
तो फिर उसको फिर मैंने स्कूप अप करके जो छोटे पीसेस थे गार्बेज डिस्पोजल में डाले, एंड आई इमेजिन द ट्रक ऑफ द गार्बेज डिस्पोजल गोइंग, ठीक है, परफेक्ट। बट आई डोंट नो वेयर इट गोज आफ्टर दैट। हाँ, बट दिख नहीं रहा है आपको, चला हाँ, गया धीरे मतलब धीरे आउट ऑफ साइट। हाँ, अब I at that point was not associating it with my anxiety gone or not gone, but the object of the hour glass and the pieces of the red glass had gone. Subconsciously, our subconscious brain knows कि ये representation anxiety का था, तो eventually you will feel coming few days में वो आपको realize होगा। बहुत अच्छा experience था, but और expectation से ज़्यादा था, deep था, subtle था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से मेरे को किसी और दुनिया की झलक दिख गई और ऐसा anything like that, but yes, there is something to it, the process by which the command is inserted, the subconscious, मतलब this is the first time I have felt my subconscious manifested in front of the conscious mind. It has not yet happened. You can actually see it. हाँ, you can actually, that was the weirdest part. Right. But it was a great experience and very, very interesting in fact. Great. Thank you so much. डॉक्टर तमन्ना, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दैट सेशन, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। कुछ सवाल तो मैंने पहले ही सोच रखे थे, बट उस सेशन के बाद और बहुत सारे सवाल अब दिमाग में आ ही गए ऑब्वियसली। सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, आई थिंक जो ऑडियंस भी जानना चाहेगी, एक तो वो होता है हिप्नोसिस जो हम नॉर्मली सुनते हैं, वही किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, यू नो, इट्स ऑल द वियर्ड विशी वॉशी स्टफ वी हियर अबाउट इट। स्टेज पे जो दिखाते हैं, जो मैजिक ट्रिक्स कि मैं अब आपको मुर्गा बना दूंगा और अब चुटकी दूंगा, चुटकी बजाऊंगा तो आप अंडा दे दोगे, और सम वियर्ड स्टफ लाइक दैट। सो इज दैट एक्चुअली पॉसिबल? एंड आई एम आस्किंग दिस ऑल्सो बिकॉज हमने ये तो देखा, इनफैक्ट मैंने तो एक्सपीरियंस करा कि सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, और उसमें सजेशंस जाते हैं अंदर, और अगर अंदर कोई सजेशन चला जाता है तो बॉडी उस कमांड को ओबे करती है। इसका एक्सटेंट क्या है, इसका एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है? सो सर, देयर इज नथिंग लाइक कि एक ही फर्स्ट सेशन में या एक ही बार में आप इतने एक्सट्रीम किसी लेवल पे जा सकते हो। इट डेफिनेटली टेक अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट जो आप मुझे बता रहे हो वो हिप्नोथेरेपी नहीं है। जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टेज हिप्नोसिस है, दैट इज़ नॉट हिप्नोथेरेपी, एंड फ्रैंकली एज पर मी दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सजेशंस डालते हैं। पहली बात, वो सजेशंस वो होंगे जो आप खुद एक्सेप्ट करना चाहोगे, जिन पे आप खुद काम करना चाहेंगे, वही चीज़ हमारा माइंड एक्सेप्ट करेगा। लेट्स सपोज इफ आई से समथिंग व्हेन यू आर इन अ हिप्नोसिस स्टेट, और मैं आपको कुछ कहूँगी जो आपके मॉरल्स वैल्यूज़ के खिलाफ है, आप उसको नहीं मानेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू वर्क ऑन, हाउ इन यू आर फॉर दैट, देन ओनली द माइंड विल बी एबल टू यू नो accept the suggestion. But the fact कि मेरे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल के बाहर सजेशन जा रहा है, बाहर से आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा, और बॉडी मान रही है उसको, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और एक पूरे के पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस खोल देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुपर नेचुरल फोर्सेस होते हैं, बट हमारे अंदर एक फोर्स है अनकॉन्शियस का, जो ऑफ कोर्स फ्रॉइड ने अनकवर किया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि लोगों के मोटिव्स और उनके बिहेवियर्स उनके कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल कम होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा होते हैं। एब्सोल्युटली। और ये चीज़ ऑफ कोर्स दिस हैज बीन टर्न्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ थेरेपी व्हिच इज हिप्नोथेरेपी, टू व्हिच बेसिकली, इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली, टू पुट अ पेशेंट और द क्लाइंट इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, एंड आफ्टर दैट ट्रांस टू रिमूव समथिंग which is not positive or something which is self-defeating, और उसी सजेशन वाले मैकेनिज्म के थ्रू टू इंजेक्ट समथिंग which is good. Now, of course, the mind goes to the extreme cases, और एक एक्सट्रीम केस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर आई थी, इंसेप्शन। यस, इंसेप्शन में भी कॉन्सेप्ट सेम है। व्हेन यू ड्रीम, वेयर आई थिंक द ड्रीम इज योर अनकॉन्शियस माइंड के रिफ्लेक्शंस। यस, अब सबकॉन्शियस। फ्रॉइड तो बोलते थे कि द ड्रीम्स रिप्रेजेंट योर डिजायर्स, बट वो आई थिंक डीबंक हो चुकी है कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादातर। आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट एग्री। यस, आई थिंक सो। कुछ डिजायर्स, कुछ विशेस हो सकती हैं ड्रीम में आ रही हूँ, बट दैट इज बिकॉज शायद हमने उसके बारे में कॉन्शियसली सोचा होगा, तो इस वजह से ऐसा कुछ हम ड्रीम में देख रहे हैं। बट यूजुअली व्हेन वी ड्रीम,
जो हमारी ब्रेन स्टेम है वो बिट्स एंड पीसेस इधर उधर की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्टिवली एक स्टोरी में फॉर्म करती है. तो वो ड्रीम्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी कोई पर्टिकुलर चीज का नहीं है. इट इज जस्ट अ स्टोरी दैट अवर सबकॉन्शियस मेक. वो सबकॉन्शियस में कुछ कॉन्शियस एलिमेंट्स भी होंगे, कुछ डीप डिजायर्स भी हो सकती हैं. ठीक है. तो और आइडिया ये है कि इंसेप्शन में एटलीस्ट उस पिक्चर में कि आप किसी के ड्रीम के अंदर जाके आइडिया प्लांट कर सकते हो. दैट इज द आइडिया ऑफ द मूवी. दैट्स द बेसिक प्रेमिस. ऑफ कोर्स इट्स साइंस फिक्शन, बट डू यू थिंक it is possible? Again, I'm coming back to the first question. To what extent are humans suggestible? To what extent can ideas be really planted in the mind? To what extent can it be taken outside even hypnotherapy? I'm not saying सिर्फ clinical settings में. I'm saying अगर mind suggestible है तो लोग तो यूज कर ही रहेंगे उसको. एक्सट्रीम केसेस कहाँ तक जाते हैं इसके? हिप्नोथेरेपी अलोन कैन नॉट डू समथिंग कि जिससे आप कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर दोगे जो नॉर्मली हम कॉन्शियसली नहीं करना चाहते. बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं. अगर आप किसी के ड्रीम्स में या माइंड में कोई एक आइडिया डाल रहे हो, उसके साथ में अलॉन्ग विद दैट आइडिया और अलॉन्ग विद दैट सेशन जो आपने उसके लिए लिया है, उससे पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ग्रूमिंग करना उस पर्सन की, स्लीप डेप्रिवेशन अगर पर्सन में है कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उसको कर रहे हो, फिर आपने किसी एक सेशन में जाके उसको कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से वो प्रेशर फील करके एंड द पर्सन इज एक्चुअली डूइंग दैट. बट ये बहुत रेयर है. अच्छा. ये प्रैक्टिकल नहीं है. यूजुअली जो आपके मोरल्स हैं, आपके वैल्यूज हैं, आप उसके खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करते हो, और ये ऐसे किसी एक्सट्रीम तक नहीं जाता है. अब यूजुअली हमारे मतलब हिप्नोथेरेपी में जो हम बोलते हैं ना कि कहाँ पे हिप्नोथेरेपी नहीं करनी है, जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, दैट इज साइकोसिस वाले केसेस. अच्छा. जहाँ पे ऑलरेडी दिमाग में कुछ डिल्यूजन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ delusion of reference in somebody that people are talking about me. मैं जब भी बाहर निकलता हूँ लोग मेरे बारे में बातें करते हैं. तो if you are a trained therapist, if you are a psychologist and for that say a clinical psychologist, तो आप हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पे समझ जाओगे कि ये इंसान साइकोटिक कोई सिम्टम दिखा रहा है. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में वो पता चल जाएगा. तो आप हिप्नोथेरेपी करोगे ही नहीं. बट जहाँ पे जो हिप्नोथेरेपिस्ट साइकोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं, या हम एक हफ्ते की कोई ट्रेनिंग लेकर हिप्नोथेरेपिस्ट बन गए हैं, वहाँ पे वी विल नॉट नो दैट इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस. उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि आप हिप्नोसिस में लेके जाओ और कुछ ऐसा फॉल्स बिलीफ जो ऑलरेडी पेशेंट मान रहा है वो बहुत पक्का हो जाए कि मैं तो ये सोच रहा था और ये 100% सच है. तो वहाँ पे ये गड़बड़ होती है, वहाँ पे ये ऐसा एक्सट्रीम कुछ जा सकता है जो नॉर्मली नहीं जाना चाहिए. बट हिप्नोथेरेपी इज नॉट फॉर सच केसेस. जहाँ पे न्यूरोसिस और साइकोसिस की बात है, न्यूरोसिस केसेस में हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. बट साइकोसिस अगर थोड़ा बहुत भी है, अगर हमें बॉर्डरलाइन भी लग रहा है कि इनसाइट प्रेजेंट नहीं है, टुवर्ड्स डिल्यूजन, टुवर्ड्स हैलुसिनेशन है, we must not do hypnotherapy on such patients. Okay. Do you want to know who you really are? आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों करते हो? आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? These things are unlocked when you understand personality. Psychometric psychology बहुत एडवांस हो चुकी है. दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5. ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग. For free, we have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे से लोगों ने पूछा जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ और प्रॉपर डॉक्टर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विल कम परफॉर्म हिप्नोथेरेपी ऑन मी. तो लोगों का सबसे बड़ा रिएक्शन था कि ये आर यू क्रेजी? Is it safe? You know, something going to happen to you? Will it mess with your head? The question I think that they are thinking is, what happens when hypnotherapy goes wrong? क्या हो सकता है? हिप्नोथेरेपी पहली बात तो रॉन्ग वहाँ पे होगी जहाँ पे जिस पे करनी नहीं चाहिए हमने उस पे की है. जहाँ पे हम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सेशन किया आपके साथ, तो ये तो आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ में आया कि हम बहुत कुछ मैजिकल नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ किसी भी इंसान को नॉर्मल अवेकनिंग स्टेट से एक मोर रिलैक्स्ड, मोर फोकस्ड, मोर रिस्पॉन्सिव स्टेट की तरफ लेके जाते हैं. जब हम उस स्टेट में जाएंगे तो हम थोड़े सजेस्टेबल हो जाते हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें जो मैं खुद चाह रहा हूँ कि हो,
वो चीज़ें अगर कही जा रही हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे लैंड कर रही हैं. आवर सबकॉन्शियस ब्रेन इज अराउंड 88% और समथिंग पूरे एंटायर ब्रेन में. Okay. सिर्फ 12% कॉन्शियस है. सो इट्स लाइक ब्रेन को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो द टिप ऑफ द आइसबर्ग उस तरीके से अगर हम समझें, दैट इज द कॉन्शियस ब्रेन. उसके नीचे बहुत बड़ा ऐसा ब्रेन है जो जिसके बेसिस पे हमारे करंट एक्शंस, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे बिहेवियर्स आ रहे हैं जो सबकॉन्शियसली हैं. तो 3 स्टेजेस में, वन इज द कॉन्शियस स्टेज जो हमारे करंट थॉट्स हैं, करंट परसेप्शंस, करंट फीलिंग्स. देन कम्स अ प्री कॉन्शियस स्टेट. वो चीज़ें जो हमारी मेमोरीज हैं या फैक्ट्स हैं जो हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो याद आ जाएगा. Right. वो प्री कॉन्शियस है. ठीक है. तो हम हिप्नोथेरेपी में वो प्री कॉन्शियस स्टेज को पार करके सब कॉन्शियस में जाते हैं, जहाँ पे हमारे वो डीप सीक्रेट वांट्स, विशेस, इनसिक्योरिटीज, डिजायर्स हैं, जिन डिजायर्स पे वो हिप्नोथेरेपी में फिर वो डिजायर्स कैन कम आउट. वी कैन नो अबाउट कि किस वजह से हम ये पर्टिकुलर बिहेवियर करते जा रहे हैं इतने सालों से. तो वो क्या चाइल्डहुड ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ट्रॉमेटिक है या नहीं है, डिपेंड करता है वो किसी भी केस में. तो वो कहाँ से आ रहा है वो हमें समझ में आता है वहाँ से. तो सजेस्टेबिलिटी हर किसी की सेम नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन कि अगर एक पर्सन हाईली सजेस्टेबल है तो उसके लिए ईजी होगा टू गो इन द ट्रांस स्टेट. वो जो प्री कॉन्शियस वाला स्टेज है उसको पार करना उसके लिए ईजी है. जो सजेस्टेबिलिटी जिसकी कम है वहाँ पे हमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं. बट ऐसा नहीं है वहाँ कर नहीं सकते. अगर सामने वाला चाह रहा है कि मुझ पे हिप्नोथेरेपी हो, मेरे को इस चीज़ पे काम करना है, तो फिर डेफिनेटली विद द राइट सेटिंग्स, विद द राइट हिप्नोथेरेपिस्ट एंड विद द राइट सजेशंस हम वहाँ तक जा सकते हैं. तो हम प्री कॉन्शियस माइंड को पार कर रहे हैं हिप्नोसिस में. ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस करा. आई एग्री. सब कॉन्शियस माइंड तक जा रहे हैं. उसके नीचे क्या है? अनकॉन्शियस. सो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आर सिनोनिम्स. ओके. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग. हमें यूजुअली लगता है कि ये सिर्फ सीक्रेट चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है, हम कॉन्शियसली हमें नहीं पता. बट इट्स नॉट जस्ट दोज सीक्रेट इनसिक्योरिटीज और विशेस. देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल इमोशनल कंडीशनिंग हम इसको बोलते हैं. कभी कोई सॉन्ग एसोसिएटेड है अगर किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी एक्सपीरियंस से, तो वो सॉन्ग अगर हम 10 साल बाद भी सुनेंगे तो हमें वो सेम एक्सपीरियंस याद आ जाएगा, वो सेम फीलिंग आएगी. कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी. हाँ, ये इम्प्लिसिट मेमोरी बोल सकते हैं. ये हमारे वहाँ से आ रही है, द सबकॉन्शियस ब्रेन से. अब इम्प्लिसिट बाइसेस एक चीज़ है जो वहाँ पे होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 4 रेज्यूमेज इन फ्रंट ऑफ यू एंड किसी एक का नाम वो है जो आपका नाम है, तो सबकॉन्शियसली थोड़ा सा फेवर उस तरफ जाएगा. तो हम कॉन्शियसली बायसनेस नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज देर इज सम रिलेटेबिलिटी तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वो बायसेस करता है. और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इम्प्लिसिट मेमोरी हमारी एक होती है. जैसे अब जब हम घर से ऑफिस जाते हैं तो कुछ बीच में ऐसे रास्ते के सम इंस्टेंसेस जो हमें याद ही नहीं है कि हमने वो मोड़ कब मुड़ा था. वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एक्टिवली, बट पैसिवली हमारे सबकॉन्शियस की जो वो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो आपको गाइड कर रही है कि अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है. राइट. तो ये सब चीजें यस ऑटोमेटिक. आपने सबकॉन्शियस बायसेस की बात करी और बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस बायसेस में होती होंगी, आई एम श्योर. अ प्रेफरेंस फॉर सम टाइप्स ऑफ फेसेस, यस, अ प्रेफरेंस फॉर सम साउंड्स. बचपन की वो यादें जो किसी गाने के साथ या किसी जगह के साथ या किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ या किसी आइटम या ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब वहाँ है, स्टोर्ड है, और हमको नहीं पता. वी डू नॉट नो दिस. Right? Consciously we don't know. We don't know. Phobias भी होंगे. A lot of fears and phobias हमारे childhood experiences से आते हैं. Childhood experiences. Yes. And they are stored there. They are stored there. तो आपके कभी has it happened to you in your hypnotherapy sessions where you have uncovered something very unexpected? Okay. Let me tell you a case. So there was this boy who came जिसको balloon की sounds से या बहुत लाउड नॉइसेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. तो इनिशियली वी डिड नॉट नो कि ये क्यों है. वी नॉर्मली वर्कड ऑन कि व्हेन एवर यू हियर सच साउंड्स तो आप रिलैक्स कैसे करोगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करना, मेडिटेट करना या फिर माइंडफुलनेस यूज़ करना. शुरू में सीधे हम हिप्नोथेरेपी में नहीं लेके जाते किसी को भी.
वंस हमने उस पर्टिकुलर स्टेज में उसको रिलैक्स करना सिखाया, देन वी मूव टू कि ये कहाँ से आ रहा होगा. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कुछ की कुछ समथिंग क्या ट्रिगर होता है, क्या थॉट्स आते हैं आपको उस टाइम पे, इज इट समथिंग पर्टिकुलर, कोई फीलिंग ऐसी पर्टिकुलर ट्रिगर हो रही है. अब वहाँ से भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो हिप्नोथेरेपी में गए. तो हिप्नोथेरेपी में जाके देयर वाज समथिंग दैट क्लिक्ड कि व्हेन द बॉय वाज 1 year old, उस टाइम पे उसके बर्थडे पे एक बहुत बड़ा बलून एकदम से फूटा था, जिस आवाज़ की वजह से वो करंटली वो फियर ऑफ साउंड्स है. फोबिया. यस. जब भी कोई ऐसी जोर से आवाज़ आती है तो वो स्ट्रेट अवे वो सेंसेशंस ट्रिगर हो जाती हैं कि सीवियर एंजाइटी, पैनिक सिचुएशन, दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक में इतना पढ़ा है, ये लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट, फियर फोबिया को इंड्यूस कर दिया था उस वक्त. तो इतने एथिकल कंडीशनिंग, इतने एथिकल स्क्रूपल्स थे नहीं एक्सपेरिमेंट में. So there was this psychologist, I forget his name, John Watson, I think, I don't know, whatever. Anyway, before B.F. Skinner and all those people, तो एक बच्चे को साउंड दिखा के और मतलब एक छोटा सा फरी सा ऑब्जेक्ट, स्टफ टॉय रख के, जब वो सब स्टफ टॉय आता है वो एक गुब्बारा फोड़ देते बगल में. तो उसका आफ्टर अ वाइल, विदाउट इवन दैट बलून बर्स्टिंग, द चाइल्ड डेवलप्ड अ लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ द फरी ऑब्जेक्ट. तो एसोसिएट हो गया वो फियर. तो ऐसे एसोसिएशंस और क्या क्या होते हैं. और दिस इज व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट आर द सबकॉन्शियस बायसेस इन द माइंड. जैसा आपने बताया, देयर कैन बी अ सबकॉन्शियस बायस टुवर्ड्स योर नेम साउंडिंग. पीपल से इट वर्क्स इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजंस जो हमको पता भी नहीं है, इंक्लूडिंग योर चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर. इज इट ट्रू? मैंने कहीं पढ़ा है कि पीपल टेंड टू चूज लाइफ पार्टनर्स दैट रिमाइंड देम ऑफ देयर पेरेंट्स. Yes, sir. So if I have to answer it in one line, so I'll definitely say yes. The reason here is कि because हम बचपन से as a couple अपने parents को ही देख के बड़े हुए हैं. तो as a couple how they were shapes our normalize की couples ऐसे होते हैं. तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि पापा ऐसे हैं तो यूजुअली मेल इन द रिलेशनशिप इज लाइक दिस, मदर ऐसी हैं तो फीमेल को ऐसा ही होता है. तो हमारी सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन सेम है कि अगर मेरी मम्मी ये चीज़ पहले कर रही थी तो आई वांट समबडी जो इस तरीके का ही हो, इस तरीके की ही बात करता हो, इस तरीके से ही बिहेव करता हो. तो वो सबकॉन्शियसली वी आर ट्राइंग टू फाइंड अवर पेरेंट्स इन अवर पार्टनर्स. वेरी इंटरेस्टिंग. और कौन से ऐसे बायसेस हैं हमारे सबकॉन्शियस में, और क्या है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो हिप्नोथेरेपी या कोई और चीज़ निकाल के दिखा सकती है हमें? ऑल सॉर्ट्स ऑफ बाइसेस. वो हमें कॉन्शियसली पता नहीं चलेगा, बट जैसे हमारे कुछ डिसीजन मेकिंग होता है, इफ़ वी मेक अ डिसीजन. सो हेयर आई कैन से वन लाइन, जहाँ पे भी आपने कोई डिसीजन लिया बिफोर थिंकिंग, वो एकदम से इम्पल्सिवली आपने कुछ किया, तो वो सबकॉन्शियस से आ रहा है. जहाँ पे आपने सोचा है थोड़ा सा कि अच्छा यहाँ क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आप कॉन्शियसली एफर्ट्स लगा रहे हो. बट वेयर वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ डिसीजन एंड जस्ट टेकिंग दैट डिसीजन इम्पल्सिवली, तो वहाँ पे सबकॉन्शियस का कुछ ना कुछ रोल है. कहीं ना कहीं से इफ देर आर 5 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड विदाउट थिंकिंग आई चूज 1, तो वो कुछ ना कुछ मेरी पुरानी मेमोरी है उससे रिलेटेड, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है जिसने मुझे बायस किया है कि ये ऐसा दिखने वाला ये होना चाहिए. एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि निकलता है, हम पहले बात कर रहे थे, आप जब हिप्नोथेरेपी करते हो तो आप ऑब्वियसली, आप और सब साइकोलॉजिस्ट्स चाइल्डहुड में इंटरेस्टेड होते हो. साइकी फॉर्म हो रही होती है, अर्ली ट्रॉमास पर्सनालिटी को शेप करते हैं, तो बहुत क्लूज चाइल्डहुड से ही निकलते हैं. यू गो एज बैक इन टाइम एज व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब. राइट. 1 साल के पहले. और आपने मुझे बताया कि देर आर केसेस व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब और उसके आसपास के एक्सपीरियंसेस जो उसके मदर को या उसके आसपास एनवायरनमेंट में हो रहे थे, राइट, वो उसके अंदर इम्प्रिंटेड थे कई सालों तक. यस. और आपने एक ऐसा केस भी बताया मुझे. यस. तो वो क्या केस था? एक तो ये, और दूसरा उसके बाद आई वांट टू कम टू व्हाट हैपेंस इफ वी गो लिटिल बैक फर्दर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. बट फर्स्ट लेट मी आस्क यू अबाउट दैट केस एंड what happens when you go so far back in time. Right. So yes, there was a case जहाँ पे again sound से related था ये केस, कि बहुत ज़्यादा constant banging का sound या constant loud noise से उसको problem थी. Again normal sessions, psychotherapy सब कुछ
किया हमने, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन साउंड का, एवरीथिंग पॉसिबल, बट वो ठीक नहीं हो रहा था. तो जैसे हम हिप्नोथेरेपी में बैक गए तो ड्यूरिंग द लिविंग टाइम कुछ ऐसा नहीं आया, बट इट केम आउट दैट व्हेन द चाइल्ड वाज इन वूम, मदर के वूम में, उस टाइम पे इट वाज फार बैक, पार्टीशन के आसपास की बात है. वहाँ पे व्हेन देयर वाज द चाइल्ड वाज इन द वूम एंड द मदर वाज हाइडिंग उस अपने घर में कहीं पे, और बाहर से बहुत जोर जोर से somebody was banging the door to break the door or something. कुछ बहुत ट्रॉमेटिक था उसकी मदर के साथ. तो वो मदर की हार्ट बीट, वो साउंड बहुत जोर जोर से, प्लस द बैंगिंग ऑफ द डोर्स, तो वो मिक्स्ड समथिंग कुछ उस बच्चे के दिमाग में इम्प्रिंट हो गया था. एंड दैट वाज बॉदरिंग हिम टिल डेट. He was 50 or something. हाँ, अराउंड दैट टाइम. ये हमको क्या बताती है कि जब आप कहते हो कि हिप्नोथेरेपी में आपका जो अजम्पशन है वो ये है कि 5 महीने के बाद इन यूट्रो मेमोरीज फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं. आपने मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई. हिप्नोथेरेपी में देयर आर स्टेजेस, और एक स्टेज होती है जब स्टेज 5 पे हम जाते हैं, और उस स्टेज 5 में देयर आर ग्रुप सेशंस, और ग्रुप सेशंस में इट इज ऑलमोस्ट नाउ बॉर्डरिंग टू टेलीपैथी almost. And then I want to ask you what is this stage 5, and then I want to ask you about Jung and the collective unconscious, etc. But what is this extreme level of hypnotherapy? What happens in that? So इसको हम family constellations बोलते हैं. Family constellations. In this, so we have a representative. We have representatives of जो client के अलग अलग चीज़ों को represent करेगा. And there is a therapist. There is a These client. are family members? No. Oh. These are all therapists. अच्छा, they are like they don't know this person. Not at all. अच्छा. जो क्लाइंट है वो सिर्फ एक थेरेपिस्ट का क्लाइंट है, बाकी सारे थेरेपिस्ट को क्लाइंट की शक्ल भी नहीं पता. वो फर्स्ट टाइम जब सेशन हो रहा है वो तब उससे मिलते हैं. These are 5 strangers. हाँ, 3 मिनिमम 3 होते हैं. अच्छा. कैन बी अप टू 6-7 आप लेकर आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस चीज पे सेशन कर रहे हैं. दैट वेज. Okay. So in these sessions, we find out interesting things about the client's life, sometimes related to their parents, sometimes related to their childhood, sometimes even past lives. So ऐसे sessions में I've represented a few times, and initially I was also very biased towards कि क्या ये चीज़ें सिर्फ मेरा दिमाग बना के बोल रहा है या सच में information client से related है. And what we find out over a couple of sessions में मुझे समझ में आया that no, this is something जो client के बहुत exact precise information आ रही है हमें. अगर जो अपने आपके पास वैसे नहीं है, we don't know the person at all. तो किस टाइप की information आती है? For example, हमें in one of the cases the information was कि when the child was around 7-8 years, there was some sexual abuse. अच्छा. तो ये information हमें during the session आई. Okay. एंड व्हेन वी आस्क्ड, तो इनिशियली शायद क्लाइंट को वो याद भी नहीं था, बट व्हेन शी एक्चुअली थॉट अबाउट इट दैट यस समथिंग हैपेंड, जो कॉन्शियसली उसके ब्रेन ने उसको उस मेमोरी को हाइड किया हुआ था. ये बहुत बार नॉर्मली भी होता है कि हमारे कुछ पास्ट ऐसी मेमोरीज हैं जो अब्यूज रिलेटेड है या कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक है, तो अवर ब्रेन यूजुअली सप्रेस इट. हाँ, वो रिप्रेस हो जाती हैं वो चीज़ें. वो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कम आउट इन FC सेशंस. अच्छा. And there was no way you could have known this. Not at all. And were you able to identify the abuser? Because I'm a skeptic, frankly speaking. Hardcore scientific materialist हूँ मैं. और मेरे को इस टाइप की कोई भी चीज़ हजम करने में दिक्कत होती है. तो is it not possible, number one, कि एक assumption है ही कि मतलब childhood abuse बहुत common है, 7-8 साल की उम्र में ही होता है और रफली उस एज के बारे में होता है. दूसरा ये भी एक फैक्टर है कि मेमोरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड. हमने अभी देखा कि ह्यूमन बहुत सजेस्टेबल होते हैं. तो इज इट नॉट पॉसिबल दैट द मेमोरी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज यू गो, एंड हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है जबकि इट्स नॉट रियली द केस. डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो नॉर्मली बहुत लोगों के साथ होती हैं, तो बोल सकते हैं हम इसको कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता था. बट कभी कभी बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ पे देर इज़ नो अदर वे कि आपको वो पता हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे उस सेक्सुअल अब्यूज के केस में किसने वो किया वो इन्फॉर्मेशन नहीं, बट कोई इस एज के अराउंड है या यूजुअली फैमिली मेम्बर है या कोई बाहर का है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ सकती है वहाँ पे.
apart from this, there was one session held जिसमें the client's real conscious memory was कि childhood उसका बहुत अच्छा रहा है. But FC session जब उसने करवाया तो उसमें ये information आई that her mother neglected her throughout the childhood. तो उसको consciously याद नहीं था. But after the session, it was so vivid that she actually remembered every single time when the neglect was happening. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेन रिप्रेस करता है, क्योंकि जब वो अगर सामने आएंगी, कॉन्शियस में आएंगी, तो वी वोंट बी एबल टू टेक इट. वो फिर हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स, एंग्जाइटीज, फियर्स क्रिएट करती हैं जो इवेंचुअली हार्म अस. देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस आई रिमेंबर इन विच जो I think there was a male, not personally my case, but yes, I've heard. Skin problems थी एक मेल को बहुत टाइम से. अब वो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे सालों तक हर लोगों तक से ठीक करवाने के बाद भी वो नहीं जा रही थी. सेम स्किन प्रॉब्लम्स उसकी बुआ को भी थी. तो वो जनरेशन में 2 लोगों को सेम स्किन प्रॉब्लम्स थी. नॉर्मल सेशंस से कुछ नहीं हुआ. हिप्नोथेरेपी सेशंस में, आई थिंक नॉट हिप्नोथेरेपी, फैमिली कॉन्सलेशन सेशंस में इन पर्टिकुलर पता चला दैट देयर वाज समबडी इन देयर हाउस जो हु वाज बर्न्ड अलाइव उसको बर्न करके, और उसको आई थिंक वो स्पेस नहीं मिला हुआ था उस फैमिली में, समथिंग लाइक दैट. अलाइव बर्न किसी आई थिंक फैमिली मेम्बर ने ऐसा कुछ किया था, एंड देन दे रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम द होम जहाँ पे ये हुआ था. Maybe some of the some female ancestor had been burnt alive. Yes, Oh. by the same family member. Oh. उनके ही किसी family member ने ये किया था, and then they ran away from the home जहाँ पे ये हुआ था. और क्योंकि उस ancestor को वो space नहीं मिला था अपना, और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ आगे generations तक, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें skin issues आ रहे थे. And after this session, surprisingly, the skin issues were gone. That is freaky. That is crazy. Yes. Oh. And this is across generations. Yes, across generations. 3 or 4 generations back. Wow. Are there other cases like this? What is the weirdest thing जो आपको लग रहा हो कि यार ये तो मतलब borderline supernatural है, ये तो होना चाहिए ही नहीं, that you have witnessed? आई थिंक यही वाला केस ही मुझे लगता है आज तक का सबसे ज़्यादा ऐसा केस मैंने मेरी जो मेंटोर हैं, आई थिंक शी हैड सेशंस विद दीज पीपल, तो शी वॉज टेलिंग हर ओन केस. तो सबसे वियर्ड तो मैंने यही सुना है. अदरवाइज नॉर्मल बहुत सारे केसेस हम FC में डील करते हैं. कुछ केसेस में पार्टनर्स चीट कर रहे हैं वो भी पता चल जाता है. Really? Really? Yes. A few of sessions में जैसे there was some relationship issue. Somebody else's client and I was the representative in this session, and then I was not representing that particular thing, but session में ये पता चला that her husband was cheating. और वो in real after a few weeks when she came back, she said that yes, it was true. He was actually doing it. Oh, wow, that is also very strange. Do you believe telepathy is real? Telepathy मतलब बिना किसी communication के, verbal or non-verbal, no communication even through the body, thoughts can be transferred from person to person. मुझे लगता है साइंटिफिकली तो आई वुड नॉट वांट टू से यस, बिकॉज ऐसी चीज़ें जब होती हैं मुझे ये लगता है कि दैट इज़ प्योर कोइंसिडेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम थिंकिंग अबाउट समवन और उनका एकदम से कॉल आ जाए तो ऐसे लगता है देयर इज सम कनेक्शन, ये कैसे हुआ? Yeah, I mean, I know, and there are 2 sides to this. If I'm a believer, I will say Jung का ही concept है serendipity. Universe is giving a sign. Yes. If I'm a skeptic, I will say it's hindsight bias. It's representation bias. Yes. कितनी बारी आप कोई चीज सोच रहे होते हो और आपके आसपास नहीं होती, you make no connection. Yes. But कभी-कभी जब हो जाती है, you over represent it, thinking कि अरे ये तो कुछ जादू है, जादू कुछ है नहीं. So it depends on which way you go. ये coincidence भी कहाँ से हो रहा है? Because we somehow have some experiences with the same person maybe. जैसे अगर हमें लग रहा है किसी का कॉल आना है या आ गया है, तो शायद ओवर ईयर्स हमारे सबकॉन्शियस को ये पता है कि यूजुअली ये इंसान वीकडेज में या वीकेंड्स पे इस टाइम पे फ्री होता है और यूजुअली कॉल्स इस टाइम पे आते हैं, तो वो उस वजह से हो सकता है. बट हमें ये लगता है कि नहीं, इट्स अ साइन. It is a sign. Yes, true. Do you believe एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब फ्रेंच साइकोलॉजी है. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज टेलीकिनेसिस, व्हिच इज माइंड की पावर से ऑब्जेक्ट्स को हिला देना.
जो कि हमारे ये इंडिया में योगी और पुराने एंशिएंट, मतलब सच आर द क्लेम्स, आई हैव नो बिलीफ इन देम, बट सच आर द क्लेम्स. एंड डू यू थिंक दिस इज अ रियल थिंग? कैन अ ह्यूमन move objects with their mind alone? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट बिलीव इन दिस. ऐसा मैंने पर्सनली अपने कभी किसी सेशन में या सीखने के टाइम पे या कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है, ना देखा है. सो आई पर्सनली डोंट बिलीव इट एट ऑल. हिप्नोथेरेपी में जो हम चीज़ें करते हैं वो बहुत पर्सनलाइज्ड फोकस्ड सजेशंस होते हैं, और सिर्फ सजेशन देने से भी चीज़ें चेंज नहीं होती. उसके बाद हमें रेगुलरली इन आवर डे कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स या फ्यू हैबिट्स ऐड करनी पड़ती हैं. बिकॉज ऑफ दोज हैबिट्स इवेंचुअली वो एफर्मेशन या जो भी चेंज वी वांट टू मेक, वो चेंज होता है. अदरवाइज इट्स नॉट एनीथिंग लाइक कि आप बस सोच लोगे तो वो कुछ हो जाएगा. यू नीड टू वर्क कॉन्शियसली एज वेल. एक बारी मैं वापस आता हूँ सजेस्टिबिलिटी पे. एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है subliminal perception. Subliminal perception is similar to hypnotherapy but not the same. Subliminal perception, again, for the benefit of the audience, is कोई आवाज़ है जो सुनाई दे रही है या कोई चीज़ है जो दिख रही है, बट अगर आवाज़ धीरे हो जाएगी और धीरे हो जाएगी और धीरे हो जाएगी तो हमको सुनाई देनी बंद कर देगी, बट वो है. सेम विद अ ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट बहुत तेज फ्लिकर करती है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन बहुत होती है, बट हमको इतनी फास्ट होती है कि वी कांट परसीव द ऑफ एंड ऑन. वी कैन ओनली सी कि अच्छा ये जल रही है. तो सबलिमिनली वी आर प्रोसेसिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड. तो सबलिमिनल परसेप्शन पे बड़े इंटरेस्टिंग कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे यूएस में पर्टिकुलरली. और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जब एक मूवी चल रही थी, और उस मूवी में ना एकदम बीच में, जैसे मूवी में देयर इज अ रोल, सिनेमैटिक रोल विच इज प्लेइंग एंड फिल्म्स आर गेटिंग फ्लिक्ड थ्रू, कट 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 प्रोजेक्टर के थ्रू. उसके बीच में उन्होंने मैसेज डाल दिया. एक मैसेज था, ड्रिंक कोक एंड ईट पॉपकॉर्न. दे वांटेड टू इंक्रीज देयर सेल्स apparently, and sales did increase. Do you think this is possible? यस, ये मैं कहूँगी कि कुछ हद तक कुछ लोगों पे काम करेगा ये. क्योंकि एक तो ये सजेशन हम बहुत डायरेक्टली किसी को नहीं दे रहे हैं, बहुत वेगली, हमारी नॉर्मल अटेंशन के थ्रेशोल्ड से काफ़ी नीचे है ये. तो वी आर नॉट डायरेक्टली सेइंग इट टू यू, बट अगर हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ करवाने के लिए बहुत बार सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस हम ऐसे लेकर आए हैं, तो देर आर चांसेस कि हम उस चीज़ को सबकॉन्शियसली मान लेंगे या कर लेंगे या उस डायरेक्शन में जा सकते हैं. अभी रिसेंटली देयर इज अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, आई थिंक बिलियनियर्स बंकर. उसमें भी कुछ ऐसा ही यूज हुआ है कि उन बिलियनियर्स को ये विश्वास दिलाने के लिए दैट द वर्ल्ड इज एंडिंग एंड यू नीड टू गो इन दैट बंकर. कुछ ऐसे क्यूज उन्होंने प्लांट किए थे, लाइक मैसेज फ़ोन में रैंडम नोटिफिकेशंस, या जब भी वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लोग बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं एक साथ, या लोग बहुत बड़े बड़े सूटकेसेस लेकर जा रहे हैं. तो ये कुछ जो डायरेक्टली उनके लिए नहीं था, बट समहाउ इट प्लेड विद देयर सबकॉन्शियस दैट यस, जो हमें बताया जा रहा है वो सच है, इट इज हैपनिंग. सो इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट. आपको लगता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं हमको मैनिपुलेट करने के लिए? Is it possible? Must be happening. कर सकते हैं. मार्केटिंग. Exactly. मार्केटिंग में ये प्रिंसिपल्स कैसे यूज होते हैं? जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर कहीं पे सेल एक वर्ड लिखा हुआ है, हाँ. तो शायद हम उसे नहीं देखें, हाँ. लेकिन अगर वो 3 बार लिखा हुआ है तो कॉन्शियस रजिस्टर करेगा. सो 3 इज द नंबर फॉर कॉन्शियस, कि कॉन्शियसली कोई अटेंशन कहीं पे देनी है तो 3 बार वो चीज़ हो. एंड 7 इज द नंबर फॉर सबकॉन्शियस. 21 डेज तक अगर आप कुछ करोगे तो वो लाइफ टाइम रहेगा. तो 21 नंबर इन इटसेल्फ डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंस एज सच, बट 7 into 3 has a significance. Interesting. Yes. What other such things do we need to know? Because this is very interesting. Okay, so if you want to कोई हैबिट हमें नई क्रिएट करनी है, तो रैंडम पॉजिटिव एफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगी कि आई विल एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो. इट विल नेवर वर्क. आप इसको एसोसिएट कर दो किसी चीज़ के साथ कि एवरी नाइट आफ्टर डिनर आई विल पुट ऑन माई शूज एंड आई विल गो फॉर अ 20 minutes वॉक. तो आवर ब्रेन लव्स द इफ एंड देन सिनेरियोज, कि जब ये होगा मैं ये करूँगा, तो तब वो चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं. इंटरेस्टिंग. एक आपने 21 डेज और हैबिट की बात करी, तो वी क्रिएटेड अ सिस्टम. 21 day हैबिट,
21 डे कंसिस्टेंसी चैलेंज वी क्रिएटेड, जिसमें हम्म, हम बोलते हैं कि आप कोई भी गोल लेकर आओ, ब्रिंग एनी कमिटमेंट फॉर 21 days, वी विल कीप यू अकाउंटेबल एंड वी विल आस्क यू टू चेक इन. You commit a little bit of money, and if you check in every day, just check in, सिर्फ check in. हम प्रूफ भी हम कंपलसरी नहीं करते, हम कहते हैं सिर्फ चेक इन ही कर लो, आप चाहे झूठ बोलना झूठ बोलो बेशक, बट चेक इन फॉर 21 days, we will refund you that money. And that we are using loss aversion, and every day we keep giving them a lot of cognitive dissonance also. So what happens is, पहले 1-2 दिन तो लोगों को लगता है यार ये तो ऐसे ही है, let us try. And then before the 3rd and the 4th day and the 5th day, हमारी engagement डिप करने के बजाय ऊपर जल्दी स्टार्ट हो जाती है. And people start to realize that now the if and then scenario has started and now they are hooked. yes. And there is this very interesting effect I was reading about, the Zygarnik effect, which says कि लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, the mind does not like incomplete tasks. अगर मैं एक गोला बना दूं और उस गोले को थोड़ा सा मैं छोड़ दूं तो ब्रेन उसको इमेजिनेशन में कंप्लीट करता कंप्लीट करता है. कंप्लीट कर अरे ज़ायगार्निक इफेक्ट यूज करते हैं ये हम्म. नेटफ्लिक्स सीरीज में, जब ये बनाते हैं एडिक्टिव से सीरीज, तो वही ज़ायगार्निक इफेक्ट यूज कर रहे हैं हमने. लास्ट में कुछ छोड़ देते हैं. लास्ट में कुछ छोड़ देते हैं. सो यू वांट द क्लोजर, yes. एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल साइंटिफिक. Absolutely, it will work 100%. So let me tell you, in few of my clients that I see, few of them are preparing for something, कुछ competitive exam या कुछ, और consistency is a problem. करेक्ट. तो one small thing that I say them is कि every night at 11 AM just text me personally कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी. That's it. आपको और कुछ नहीं करना. And I've seen the numbers increasing, number of hours थोड़ा कम भी होता है, but again increase, क्योंकि एक accountability हो गई, Yes. proper time मैंने बताया, Yes. and I check up. अगर 2 दिन मैसेज नहीं आया तो मैं मैसेज करती हूँ like क्या है last 2 days से. हाँ, तो बिल्कुल. it works a lot. सिंपल सी सिचुएशन है, बट बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं. Yes. सोशल प्रूफ भी तो है. मतलब अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो पीपल माइट और माइट नॉट कीप देयर प्रोमिसेस टू देमसेल्व्स, बट कोई सामने वाला होता है और अगर अथॉरिटी फिगर है और उसके आपको लगता है कि आपको पता है कि वो देख रहा है या वो देख रही है, और वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो इतना बड़ा एक इम्पैक्ट करता है लोगों के माइंड पे, द सोशल इफेक्ट. इसी से एक और सवाल निकलता है. आपने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं सोशल एंजाइटी की वजह से, और सोशल एंजाइटी और ADHD 2 चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट? तो सोशल एंजाइटी और कॉन्फिडेंस, हाउ कैन दैट इंक्रीज? बिकॉज अगेन द क्वेश्चन बिकम्स, सजेस्टिबिलिटी तो है, सजेस्टिबिलिटी के लिए अब ठीक है कोई इंसान हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएगा, और अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट मिलना भी आसान नहीं है, और अगर मिल गया सपोज तो ठीक है, बट नॉट एवरीबडी कैन डू इट. व्हाट आर द वेज दैट वी कैन इंड्यूस पॉजिटिव चेंज इन आवरसेल्व्स यूजिंग सच टेक्निक्स? ठीक है. सो जब भी कॉन्फिडेंस पे हम काम करते हैं, डिटेल्ड केस हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट दिस, इन एवरी केस. और वो डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग आई थिंक साइकोलॉजिस्ट्स को बहुत अच्छे से आती है. जब हमने इसमें डिग्री की है, हमने सीखा है प्रॉपर क्या क्या चीज़ें पूछनी है, कितनी डिटेल में पूछनी है, तो वंस वी रीच टू द कंक्लूजन कि ठीक है कॉन्शियसली तो इसकी लाइफ में ये हुआ है, राइट, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो वो मे बी इस एज से हुआ है या इस इंसिडेंट से हुआ है, तो वो जहाँ से भी कम होना स्टार्ट हुआ है, कॉन्शियस वर्क सबसे पहले हम उस पर करते हैं. आई नेवर डायरेक्टली स्विच टू हिप्नोथेरेपी. शुरू में आई ऑलवेज डू द कॉन्शियस वर्क कि उसको समझने की कोशिश करो, क्यों हुआ ये चीज़, कहाँ से आ रहा है. अब जब लेट्स सपोज इफ आई एम अ पर्सन जिसको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी इन पब्लिक प्लेसेस, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, सोशल एंग्जाइटी मुझे है, तो सबसे पहली चीज़ है कि मेरे फिजिकल सिम्टम्स जो हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, या मुझे स्वेटिंग शुरू हो जाती है जैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं. अब वो शुरू कहाँ से हो रहा है, उसके बेस पे काम आप शुरू में नहीं कर पाओगे, बट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो सरफेस पे हैं, काम वहाँ से शुरू होगा हमेशा. whenever you feel anxious, these are the 3 things that you have to do. प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं तो देती हूँ चीज़ें. स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है. तो हम फिजिकल बॉडी के सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं. जब वो हो गया, फिर हम जाते हैं और डीप कि ये जो हुआ है आपको कहाँ से ट्रिगर हुआ, या क्या थॉट आपके मन में आया. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, इट वर्क्स वेरी गुड विद फाइंडिंग आउट कि कॉन्शियसली क्या चल रहा था दिमाग में, हमारे थॉट्स क्या हैं, क्या फीलिंग्स ये जनरेट कर रहे हैं.
बहुत बार ऐसा होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ही वी नो कि ये कहाँ से आ रहा होगा. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? आई वुड लाइक टू आस्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस. श्योर. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निशन इज अवर थॉट प्रोसेस, करंट थॉट प्रोसेस जो चल रहा है. हमारा करंट थॉट प्रोसेस हमारे बिहेवियर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. द थेरेपी इज अबाउट दैट, हाउ वी कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ any stimulus given, any situation given, and our behaviors will change. तो वो अभी करंट जो परसेप्शन है बेस्ड ऑन दैट हमारे बिहेवियर्स हैं. जैसे ही हम उस परसेप्शन को चेंज करेंगे. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल somebody with a smoking addiction और anxiety. In fact जो भी smokers मैंने देखे हैं, मैं तो anxious लोगों को ही देखा है स्मोक करते हुए, और anxiety होती है तो उनका वो ट्रिगर होता है. तो उसके केस में सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैसे काम करेगा? सीबीटी इन केसेस में शुरू में टू अंडरस्टैंड कि लाइक अगर आपको एंग्जाइटी हुई तो एंग्जाइटी तो एक फीलिंग है सिर्फ, जिसकी वजह से आप बिहेवियर क्या कर रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो. लेकिन इससे पहले क्या था, थॉट क्या था? वर यू फियरफुल ऑफ समथिंग, वर यू फियरफुल ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, या पास्ट में कुछ कर दिया जिसका रिग्रेट है. तो हम पहले कॉग्निटिवली ये फाइंड आउट करते हैं कि कॉन्शियसली हमें क्या क्या पता है, कहाँ से ये आ रहा है. कॉन्शियसली जहाँ पे चीज़ें समझ में आती है वहाँ पे फिर हम फैक्ट चेकिंग करते हैं, कितनी चीज़ें सच में सच हैं, फैक्ट्स हैं, और कहाँ पे शायद हमारा ही कोर रिजिड बिलीफ है जो ये एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है. नीड नहीं है, बट क्योंकि कोई एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आज भी हम वही सोचते हैं. इसको ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं. इट्स फॉर्म ऑफ अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वेयर बिकॉज वन ऑफ द एक्सपीरियंस वी हैड इन द पास्ट वी जनरलाइज इट कि अब भी ऐसा ही होगा. इट क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड देन वी डू सर्टेन बिहेवियर जो इवेंचुअली हैबिट में, एब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है. जहाँ पे कॉन्शियसली समझ में आया तो थोड़ी बहुत चीज़ें टेपर डाउन वहीं हो जाएंगी. जब भी हम इस पे अब हिप्नोथेरेपी से काम करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं. सिर्फ पॉजिटिव सजेशंस या सिर्फ ये बोल देना दिमाग में सबकॉन्शियसली कि अब से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, वो वर्क नहीं करेगा. सीधा कुछ इम्पैक्ट हो सकता है 5-10%, पर वो लास्टिंग नहीं है. उसमें हमें साथ में कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टेज फियर है, स्टेज पे बोलने के टाइम पे वी फील एंग्शियस, तो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके हम ये ऐड कर सकते हैं कि बिफोर एवरी स्पीच दैट आई हैव टू मेक आई विल प्रैक्टिस 10 मिनट्स मिरर के सामने उसको देख के, आई कांटेक्ट करके. तो हमने कोई एक चीज ऐड कर दी. जब हम उसमें समथिंग टैंजिबल ऐड करते हैं तो वो काम होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं और वो चेंज आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं. एक चीज तो ये, जब हमने कुछ ऐड किया ऐसा. दूसरा फिर हम हिप्नोसिस में लेके जाके उनको रोल प्ले करवाते हैं कि इमेजिन करो कि आप वहाँ पे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है. तो वो एग्जैक्टली उस सिनेरियो को इमेजिन करवाना. फिर हम एक एंकरिंग करते हैं. एंकरिंग होता है जिसमें 4 फिंगर और थंब को टच करवा के वेन एवर यू टच दिस यू विल बी रिलैक्स्ड. तो हमने पहले रिलैक्सेशन करवाया, उस रिलैक्सेशन के साथ इसको एंकर किया. अब इस एंकर को यूज किया ड्यूरिंग द रोल प्ले. जो हम इसको रियलिटी में फिर यूज करेंगे तो वहां पे यू विल फील द रिलैक्सेशन अगेन. इंटरेस्टिंग. तो आपने आई सी द प्रोसेस बट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस बट आई सी इट. और आपके एक फॉर्मर क्लाइंट ने मुझे उसके बारे में बताया, और ये जो एंकरिंग वाला बता रही हैं, ही वाज वेरी बुलिश ऑन इट. ही सेड कि मेरे को पता क्या बताया उसने, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी है तो मैं नाम नहीं लूंगा उसका. कह रहा था कि मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ हर रोज, तो एंजाइटी हो रही थी उसको. आपको तो पता ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल हार्डशिप. देन यू मस्ट हैव टॉट हिम दिस एंकरिंग टेक्निक, ये वाली. हाँ, ये मैंने सिखाया उन्हें. तो ही वाज प्लेइंग सम बैडमिंटन मैच एंड ही वाज लूजिंग बैडली. 10-0 का स्कोर था. कह रहा था हो ही नहीं रहा था, इट वाज नॉट इन द फ्लो. एंड ही सेड आई डिड दिस and he won the game. That's what he said to me. Okay. Yes, I make no exaggerations. These are his words. हाँ, ये मेरी बात हुई नहीं है, but definitely होगा because I know. He did this. हाँ. And it reversed it. So the mindset, जिस चीज को हम mindset बोलते हैं, इतना एक तो इतना abuse word है ना mindset, के लोगों को समझ में नहीं आता कि mindset क्या है. Self help book पढ़ के mindset नहीं होता है. You are a professional who structures and manipulates and actually creates mindset. अब माइंडसेट में जो फिजिकल कंपोनेंट है आपने बताया, यू डिड रिलैक्सेशन, देन यू हैड देम एंकर इन दिस एक्ट,
अब जैसे ही एक्ट हुआ उसका इमीडिएटली उसको आई एम श्योर उसका नर्वस सिस्टम और उसका माइंड उसी स्टेट में लिंक चला हो गया गई, होगा। दोनों चीजें लिंक हो link गई, हो हाँ, एसोसिएट हो गया। बड़ी पावरफुल चीज है ना। Yes. अब नोबडी बट अ प्रोफेशनल कैन डू दिस। एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी के टाइम पे बहुत वर्क करता है। इंटरेस्टिंग, ये मैं भी सीखना चाहूंगा। श्योर। This is something I would love to do because I do Sure, get sure. the jitters at times and I'm not as confident. I mean, confidence I don't think is an issue, but why should I not have a tool which can help me improve my performance on demand? Absolutely, it works wonders. काफी अच्छे फीडबैक्स इसके हैं। So this is another very interesting thing, but I want to come a little bit to again using all these techniques for self improvement. So हमको पता है कि आपने कहा कि अगर 7 बारी कोई चीज रिपीट करोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। राइट, नॉट जस्ट वंस, एक बार करने से नहीं होगा। हाँ, रिपीट में। हाँ, रिपीटिशन। एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था खुद ही के साथ। फोन, we'll talk about the phone and social media also, of course, and ADHD also. But the phone is always with us now. It's part of our body. हमारी अपेंडेज की तरह हो गया ये। तो अब ये तो है ही साथ में। और मैंने सोचा कि अपने आप को जो ऑटो सजेशंस देने हैं इसके अंदर रिपीट रिमाइंडर्स लगा के छोड़ देता हूँ, बचता रहेगा। तो मेरे को फिर देन आई थॉट अबाउट इट एंड सेड व्हाट शुड इट बी, व्हाट शुड द वर्ड्स बी, क्या होगा रिमाइंडर एग्जैक्टली, क्या चाहिए। That's what I was thinking. I was just intuitively trying to do it. And I thought one of the best things that I can insert is the mantra called I am incredibly lucky. ये मैंने लिख दिया उसमें और मैंने रिपीट रिमाइंडर लगा दिया। 4 साल हो गए हैं लगा हुआ है अभी भी, और दिन में 2 या 3 बारी बचता है। अब 4 साल से बज रहा है। मैंने उसको ये तो 90% ऑफ द टाइम आई थिंक क्या हटा देता हूँ मैं, स्नूज इट, बट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दिखता तो है हटाते हुए भी। इट गोज इन, यस, slowly it goes in, and I think this is one thing. Do you approve of this? 100%। मैंने खुद के लिए भी यूज किया है। अच्छा। काफी साल पहले, उस टाइम पे आई वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट आई डोंट नो समहाउ देयर वाज सम टेस्ट दैट आई हैव टू गिव। आई थिंक CDS का एग्जाम था मेरा, उसके SSB के लिए आई हैव टू गो। सो 5 days व्हेन आई वाज देयर, बिफोर दैट जब मुझे वहां जाना था तो तब मैंने कुछ लिख के और अपना वॉलपेपर लगाया था कि जब भी मैं उसको खोल के देख रही हूँ मुझे वो रिमाइंडर है कि हाँ दिस इज समथिंग आई हैव टू डू फॉर दिस। एक तो होता है रिमाइंडर फॉर द कॉन्शियस माइंड कि भी चलो 5 बजे अलार्म है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। एक होता है वो रिमाइंडर जो सीधा सबकॉन्शियस में ही जाके बैठ जाए। रिपीटिशन सर हमारे चाइल्डहुड से भी तो आ रही है। देयर आर सो मेनी पीपल हु कम एंड से दैट आई एम नॉट गुड इनफ। ये बहुत कॉमन है खुद के बारे में लोगों का परसेप्शन दैट आई एम नॉट गुड इनफ। और जिसका भी ये है, अगर आप प्रोब करोगे ना तो आई थिंक 70% इट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपीरियंस में किसी ना किसी चीज़ के बाद ये लाइन बार बार बोल बोल के ऐड की है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो बोल रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं है उसका। पेरेंटिंग आई थिंक अनदर एक एंटायर टॉपिक है टू डिस्कस, बट येस व्हाट यू आर सेइंग टू योर चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनिशियल 10 years। So what are some things that a parent should never say? कंपैरिजन एक चीज़ है जो अगर आपने एक बार बच्चे का कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, और ये इतना कॉमन है इंडिया में, इतना कॉमन है कि कंपैरिजन के बिना आप रह ही नहीं सकते। बट कंपैरिजन जब आप करते हो ना तो इवेंचुअली एडल्ट लाइफ में भी यू स्टार्ट कंपेयरिंग। बचपन से ही कर रहे हो तो आप खुद भी फिर करना स्टार्ट कर देते हो। एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स ने छोड़ दिया कंपेयर करना, बट देन यू स्टार्ट डूइंग इट विद योरसेल्फ कि मेरा फ्रेंड यहाँ रैम्पेंट है। ये तो मेरे साथ भी है, डेफिनेटली है। And what are other things that a parent should not do? Okay. In context to what? थोड़ा स्पेसिफिक ताकि। तो जैसे आपके पास केसेस आते हैं टीनेजर्स के और यंग लोगों के। बहुत सारे लोग सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अनसर्टेनिटी से सफर कर रहे हैं, एंजाइटी रैम्पेंट है, ADHD रैम्पेंट है, और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इन चीज़ों के जेनेसिस चाइल्डहुड में है। तो ऐसा क्या करना चाहिए पेरेंट को अभी कि 10-15 साल के बाद उसको हिप्नोथेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट की जरूरत ना पड़े? जो टीनेजर्स के जितने केसेस हैं ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा ये देख रही हूँ कि पेरेंट्स डायग्नोसिस को भी मान नहीं रहे हैं। दे आर लाइक कि हाँ ठीक है टेस्ट में आया है निकल के, बट हमें अब भी लगता है कि ये लेजी है। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि कुछ गलत हो सकता है, और क्योंकि ये होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो पहले तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि कुछ गलत भी हो सकता है।
दैट इज़ वाई उनका हमेशा जो कॉन्वर्सेशन है वो ऐसा रहता है. थोड़ा सा ट्रिकी है टू बी अ पेरेंट, पर्सनली भी मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप बहुत एक्सट्रीम फ्रेंडली हो जाओगे तो भी गड़बड़ है, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट पेरेंट हो जाओगे तो भी गड़बड़ है. मेंटेनिंग दैट स्पेस कि जहाँ पे बच्चा ये भी समझे कि आप अथॉरिटी हो और इतना भी नहीं हो कि वो बात नहीं कह पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक कि हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट का माइंडसेट अलग है, तो वो बहुत पर्सनलाइज्ड है ऑन हाउ टू अचीव दैट परफेक्ट बैलेंस. और कभी कभी चीज़ें गड़बड़ होंगी, बट वापस से उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप कॉन्शियस एफर्ट्स लगा रहे हो तो. देयर इज़ नो हार्म इन सीकिंग हेल्प. ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स को स्पेसिफिकली एट दिस एज ये लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को, मैं पागल थोड़ी है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे. दे डोंट वांट. बच्चा बोल रहा है 1 साल से, प्रिसाइजली 5 से 10 लोग तो मैं अभी भी गिनवा सकती हूँ जिनके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चे को दिक्कत है. वो महीनों से कह रहे हैं कि हमें एक सेशन चाहिए, हमें ले जाओ, हमें बात करनी है. दे आर लाइक कि हमसे बात कर लो, क्या बात करनी है, क्या बात करेंगे वो. एंड जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होता है, दे कम एंड आस्क कि क्या बात की ऐसी, क्या बताया उसने. सो ये बहुत कॉमन है. They do not understand. No? They don't understand that a child can need somebody else as well. हो सकता है आप ही के बारे में बात हो, उनको लगता है सब कुछ हम कर सकते हैं. और ये वैसे बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर बच्चा फ़ोन कम यूज़ करेगा, रेगुलरली अच्छी स्लीप और एक्सरसाइज अगर करेगा, तो चीज़ें ठीक रहेंगी. बचपन से शायद मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते आए थे. दैट टाइम आई डिड नॉट बिलीव इट, बट एट दिस टाइम आई डू बिलीव दिस. पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सही भी बोलते हैं, ये बहुत सही बात है, बिहेवियर एक्टिवेशन का पार्ट है, हमें ज़रूरत है ये चीज़ करने की. बट हम ये चीज़ कन्वे कैसे कर रहे हैं बच्चों को, बहुत स्ट्रिक्ट होकर, किस तरह से मार कर, वो तरीका उनका गलत है. चीज़ सही है ये. लेट मी कम टू दिस इशू जो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, ADHD. आप DSM 6 5 DSM-5 is the diagnostic and statistical manual for जिसके अंदर सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिस्टेड हैं, सिम्टम्स के साथ, मेट्रिक्स के साथ. तो अगर आपको कहते हो कि भाई कोई स्किज़ोफ्रेनिक है या कोई डिप्रेशन है, तो बहुत सारे कैटेगराइजेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, उसके मेट्रिक्स हैं. एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट उसको यूज करके डायग्नोज करता है. तो इट इज नॉट सेल्फ डायग्नोसिस वाली डायग्नोसिस की भी आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेसिव. नो, DSM-5 के हिसाब से डिप्रेशन डायग्नोज हो रहा है. तो एंड अकॉर्डिंग टू दो स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया आप बहुत फ्रीक्वेंटली ADHD डायग्नोज कर रहे हो, और ये एग्जैसरबेट हो गया है. दिस हैज बिकम मच मोर प्रोनाउंस्ड नाउ. इज इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर से नहीं बोल सकती मैं, बट येस, ये जो रील्स हैं या शॉर्ट्स हैं जो बहुत कम टाइम के लिए हैं, वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स. पहले मूवीज होती थी 3-3 घंटे की, एड्स आती थी और वो एड्स भी देखते थे हम. अभी हम सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड पे देख रहे हैं, शायद 2 मिनट की वीडियो भी हम फास्ट फॉरवर्ड पे देख रहे हैं 1.5 करके. तो फोकस और अटेंशन गड़बड़ होना वहीं से शुरू हो रहा है. छोटे बच्चे जैसे 1-2 साल के बच्चे, आजकल फ़ोन उनके हाथ में होता है, आप वहाँ पे भी देखोगे इतना फास्टली वो उनका फिंगर चल रही होती है फटाफट नेक्स्ट करने में. तो ये कहीं ना कहीं से तो हम कॉन्शियसली भी इसको डेवलप कर रहे हैं. ADHD वैसे ही समथिंग जो इट्स एन डेवलपमेंटल कंडीशन, तो ऑलरेडी वो है. इट्स नॉट लाइक कि हमने पेरेंटिंग खराब कर दी तो वो हो गया, बट येस हम उसको बढ़ा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से. सोशल मीडिया और क्या कर रहा है लोगों की मेंटल हेल्थ को? कंपैरिजन इज द वन थिंग, बहुत एक्सट्रीम. हम मैं स्लीप हाइजीन टेक्निक्स करवाती हूँ जिसमें, तो एक मेरा पॉइंट उसमें ये है कि आप सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद कर दो. बी इट एनीथिंग, कुछ भी हो. आपको अगर 11 बजे सोना है तो 10 बजे फ़ोन बंद होना चाहिए, क्योंकि जो वो रात को हम बिफोर स्लीपिंग जो वो फ़ोन देख रहे हैं ना, वो चीज़ें स्पेसिफिकली पूरी रात हमारे दिमाग में रहती हैं. फिर just before sleeping, what we thought about, what we saw. और वो यूजुअली सोशल मीडिया पे सबकी बहुत अच्छी लाइफ्स नज़र आती हैं हमेशा, क्योंकि कोई अपना नेगेटिव साइड तो नहीं दिखा रहा है. वो देख के फिर कुछ ना कुछ कंपैरिजन आता है कि ओ दिस पर्सन कैन डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू इट, ये यहाँ पहुँच गया है, या ये कर रही है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ. तो वो कंपैरिजन वो इतना दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाता है कि पूरी रात हम उसी को ओवरथिंक कर रहे हैं सिर्फ. तो सम टाइम ऑफ बिफोर स्लीपिंग
यू कैन रीड अ बुक दैट टाइम, राइट। वो ज़्यादा बेटर है. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, स्लीप हाइजीन टेक्निक्स. क्या आप हमें कुछ स्लीप हाइजीन टेक्निक्स या चेकलिस्ट बता सकती हैं? यस सर. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात को आप सोने से 1 घंटा पहले अगर गर्म पानी में नहाओगे बहुत अच्छी नींद आएगी. Okay. एक बार द बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज, गर्म पानी में नहाएंगे तो इवेंचुअली द फॉल इन बॉडी टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्लीपीनेस. सो एन आवर बिफोर स्लीपिंग यू कैन टेक अ बाथ. फ़ोन को जैसे मैंने बताया 1 घंटे पहले हमें बंद करना है. बेड पे हमें खाना नेटफ्लिक्स देखना, वर्क करना या कोई भी एंटरटेनमेंट करना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग. एक एसोसिएशन बेड के साथ हमारा नींद का, रेस्ट का होना चाहिए. जैसे किचन के साथ एसोसिएशन है ऑफ फूड. जब भी हम किचन में जाते हैं नोइंगली अननोइंगली फ्रिज खुलता है, कुछ ना कुछ तो हम खाते हैं क्योंकि एसोसिएशन ही वो है. बेड के साथ आज के टाइम में एसोसिएशन बहुत सारे हैं. तो जब नींद का टाइम होगा तब कुछ देखने का मन कर रहा होता है, जब कुछ देख रहे हैं तब सोने का मन कर रहा होता है. तो वो एसोसिएशन गड़बड़ है. 4 to 6 hours बिफोर स्लीपिंग यू कैन एक्सरसाइज, उससे हेल्प होती है. वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज डू नॉट वॉच क्लॉक एट नाइट. रात को एक बार अगर हमें पता है इट्स 10 वी हैव टू स्लीप, उसके बाद फ़ोन, रिस्ट वॉच सब कुछ साइड में रख के सुबह जब अलार्म बजेगा आप तभी उसको देखोगे. क्योंकि अगर एग्जाम्पल आँख खुली 2 बजे हैं तो एक थॉट आएगा कि अरे बस 2 ही बजे हैं, अभी तो बहुत घंटे हैं, अब मेरे को फिर से नींद नहीं आई तो. या फिर अगर आँख खुली और 6 बज गए तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो अभी सोया था, मेरा तो उठने का टाइम हो गया है, हाउ विल आई कंप्लीट माई स्लीप. तो वो जो बीच वाले थॉट्स हैं ना, वो स्लीप के साथ तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे. आपका थॉट प्रोसेस भी फिर नेगेटिव हो जाएगा. यू विल नॉट फील फ्रेश्ड इफ़ यू वॉच क्लॉक. तो ये तो प्रिसाइजली मैं फॉलो बहुत टाइम से कर रही हूँ एंड इट इज़ वर्किंग वंडर्स. मैं ये वॉच पहन के नहीं सोती रात को, सब कुछ साइड में. रात को मैं उठी हूँ किसी चीज़ के लिए भी तो भी नेवर आई वॉच अ क्लॉक. क्योंकि इफ़ आई नो, मुझे पता चल गया अगर 1 ही घंटा है मेरे पास और सोने का तो फिर उस 1 घंटा में सो नहीं पाऊंगी. ये तो बहुत कॉमनली होता है, सही बात है. यस. तो वन इज दिस, देन अदर इज अगर आप नैप लेते हैं तो 3 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए. एंड बिफोर 3 हो, दैट टू लेस देन 20-25 मिनट्स. प्रॉपर 1 घंटा 2 घंटे वो भी गड़बड़ करती है. कैफीन इनटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें भी 4 से 6 घंटे पहले मैक्सिमम आप कर सकते हो. जितना लेट करोगे उतना नींद के साथ गड़बड़ होगी. तो दीज फ्यू पॉइंट्स, और भी हैं कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो रेगुलरली अगर आप एक साथ सब कुछ फॉलो नहीं हो पाता, बट येस धीरे धीरे अगर हम ये चीज़ें अपने लाइफ में एज अ हैबिट अगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हैं इन स्लीप. तो आपने स्लीप हाइजीन के बारे में हमें बताया. इज इट ट्रू दैट हम लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं? लूसिड ड्रीमिंग मतलब ड्रीम वर्ल्ड में हम गए और हमारा कंट्रोल है उस पर, हम कुछ भी देख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन है ही नहीं. एंड आई हैव हर्ड सम टेक्निक्स जो अगर आप यूज करो तो आप लूसिड ड्रीमिंग में जा सकते हो धीरे धीरे. इज इट ट्रू? समवॉट ट्रू. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ भी देख सकते हैं, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि जब आप ड्रीम कर रहे हो तो आपको ये अवेयरनेस होती है दैट यस आई एम ड्रीमिंग. और उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में यू कैन चेंज जो ड्रीम किस तरफ जा रहा है और आपको वो एंडिंग पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो. या फिर बीच में उठ गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सपना चल रहा था, मुझे फिर से सो के कंप्लीट करना है. अभी ट्रिक्स हैं ये भी कर सकते इसके? लूसिड ड्रीमिंग के कुछ टिप्स हैं? नो टिप्स एज सच, बट ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है काफ़ी बार दैट आई हैव कंप्लीटेड सम ऑफ माय ड्रीम्स और थोड़ा सा कुछ एंडिंग्स चेंज हुई हैं. अच्छा, कुछ फाइनली रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस. रैपिड फायर तो नहीं, मैं बोलूँगा क्विक शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस. सबसे पहला, हिप्नोथेरेपी किस किस चीज़ के लिए यूज हो सकती है? कॉन्फिडेंस, fear of success, fear of failure, weight management, habits, dependence, smoking, alcohol, ये सब, and memory, attention, जैसे ADHD वालों में attention के लिए भी it is used, and similar such things, consistency, motivation. Right. There are a lot of things that we can do in hypnotherapy. कोई इंसान एक फ्लाइट में गया, प्लेन में, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है. यू रियलाइज कि आप एक टिन के डब्बे में बंद हो और वो उड़ रहा है एंड देयर इज नो वे आउट. पैनिक अटैक हो जाते हैं लोगों को.
What is one simple trick to stop a panic attack from happening? At any and every given place, your breath is your anchor. और कुछ भी साथ है या नहीं है, आपकी ब्रेथ हमेशा आपके साथ है. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरली मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते आए हो, तो वो भी सेम वहीं पे एंकर की तरह वो काम करेगा. एंड जस्ट फोकस इनवर्ड्स. बाहर जो चल रहा है उससे ज़्यादा अंदर जो चल रहा है, ट्राई फोकसिंग ऑन दैट एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प. What is the quickest way to kill anger before saying something stupid? उल्टी गिनती गिनना है, बट 10 से 1 नहीं. वो तो इम्प्लिसिट मेमोरी है, वो तो आप सपने में भी कर सकते हो. सम 3 to 4 डिजिट रैंडम ऑड नंबर से 20 माइनस करके, Like मतलब 20 तक डाउन 20 नंबर. 343 से नीचे चलो 20 उस टाइप से. यस. Interesting. So then you have to focus on something else. यस, बिकॉज हमें वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा नंबर है, फिर इसको एक पीछे, तो डाइवर्जन. Interesting. अगर आपके पास 30 सेकंड है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू में जाने वाला है, आप उसको क्या बोलेंगे कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए और अच्छा परफॉर्म करे? 30 seconds? 30 seconds just before he's going into the job interview, say, for instance. I think the basic positive affirmation, सिर्फ ये कि you will do good won't help. कोई एक चीज़ जो उसको लगती है अपनी गड़बड़ है, कि जैसे let's suppose किसी को लगता है मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो एक छोटी सी चीज़ पे वर्क करो कि I'll do well if I just speak slowly with deep breaths. That will work. Clean, smooth suggestion. हाँ, साथ में Focus कुछ on होना that चाहिए. one basic thing. Yes, जो आप गड़बड़ करते हो. What is the best way and the quickest way to reset after rejection? क्विकेस्ट कुछ नहीं है सर. अगर रिजेक्शन है और वो रिजेक्शन से आप इस लेवल पे आए हो कि आप थेरेपी के लिए आ रहे हो, तो वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं से आ रहा है. वो चाइल्डहुड से है, पेरेंट्स से है, फ्रेंड से है, पार्टनर से है, वो कहाँ से है, वी डोंट नो. सो देयर इज नो क्विक आंसर फॉर दिस. वी विल हैव टू डू ए एंटायर hypnotherapy एंड नॉर्मल थेरेपी सेशंस टू अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. हमारे पॉडकास्ट का नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ, और हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें निकलें जो स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकते. तो आपके हिसाब से सिलेबस ऑफ लाइफ में क्या होना चाहिए, स्कूल और कॉलेज नहीं बता सकता, जो आप चाहेंगे कि सब लोगों को पता चले? What I think is being human. ह्यूमैनिटी वाला साइड कहीं ना कहीं इवेंचुअली मिस आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड गोल्स एंड एवरीथिंग, कि हम वो ह्यूमैनिटी मिस आउट करते जा रहे हैं. कनेक्शंस हम मिस आउट करते जा रहे हैं. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कम हैं. तो मुझे लगता है अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहिए कि एवरी डे यू मस्ट सोशलाइज विद अदर्स, स्पेसिफिकली द चिल्ड्रन. बच्चों की सोशल लाइफ बहुत कम हो रही है बिकॉज ऑफ द गैजेट्स. तो it is definitely one thing that I would want to say, to add. And that brings me to the end of my questions. I wanted to thank you once again for demonstrating the hypnosis, for doing the session. I subjected it up, इतना open minded थे कि आपने वो किया और आपने बहुत skill के साथ उसको करा भी, and I felt it like there was real. उसको करने का intent ये था कि मैं थोड़ा सा, because I wanted to subject myself to it, मैं curious तो था ही, but I wanted to normalize therapy also. मेरा इंटेंशन था कि नॉर्मलाइज करना जरूरी है इसको. और ये भी जरूरी है कि लोगों को समझ में आए कि ये हिप्नोथेरेपी एंड दिस कैटेगरी ऑफ थिंग्स सच एज थेरेपी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम pseudoscience. This is not tarot. This is not aura cleansing. This is not some wishy-washy numerology stuff. This is proper technique of changing behavior by making a person suggestible, जो कि लोग होते ही हैं, but using that suggestibility for some positive means by somebody who's a doctor and who's trained in it. So if I think the whole point of our conversation is, तुमको अगर प्रॉब्लम है, seek help. उसको सफर करने से जो लाइफ की जो कीमत है वो कई गुना ज्यादा होगी थेरेपी से. Definitely very well said, I would say कि सीकिंग हेल्प, उससे बहुत लोग पीछे हटते हैं. उनको लगता है कि हम खुद कर लेंगे. जो लोग आ भी रहे हैं उनसे भी मैं ये देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से चीज़ें तो चल रही हैं बट मैं मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो वो जो हम कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ अगर हम शुरू में ही दिखा लेते
तो वो उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं. सही बात है. तो normalizing taking therapy is definitely one of the things everybody must, focus on. To that extent, I have put my best foot forward, and thank you for helping me do this. Thank you, sir. And it was a great experience. Thank you so much.